Morning, Arun. Good morning, Pranita. Good morning, Lakshya. I hope you guys are doing well. Can you hear me? Quickly give me a thumbs up so that we can start. Good morning. Are you able to hear me? Good morning, Lakshya. Thank you for the response. Thank you. Hi, Mudit. Good morning. So in today's session, we are going to discuss parallel structure. Then we'll keep one more session of tenses tomorrow, and after tomorrow, we are going to do a mixed bag, right? So that's the plan. So majorly, we have completed in this series sentence correction, reading comprehension. We are parallelly doing parallel structure, para completion. I'm already working in the evening, right? So that should give you the entire practice that you would be needing for the upcoming exams. Okay, so let's quickly start. Hi Shweta, good morning. So we are going to discuss parallel structure today. Very interesting concept, and good to learn. Before that, let me quickly introduce myself. My name is Juhi Narula. I have 12 years of experience in training students for CAT, GMAT, and GRE. I also happen to be a life skills coach and a content creator. I've done my bachelor's in technology and master's in business administration. This is the Telegram channel. Please join the Telegram channel so that you get the notifications about the upcoming sessions. Now, see, we offer you two subscriptions that we call Plus and Iconic. So, what do we include in Plus subscription? In Plus subscription, there are live classes, there are weekly tests, the courses are structured, and there is unlimited access to the sessions. Now, what happens in Iconic? This has got all the benefits of Plus. Apart from this, you have a personal coach who's going to handhold you in your entire journey of preparation. There's a customized study plan. There is a study material provided. There are expert guidelines and detailed test analysis. So, all these are amazing features of Iconic subscription. Now, as far as the Plus subscription is concerned, the fees for 6 months is 16,400. Like if you'll see for per month, it's hardly coming out to be anything, right? And you can see it as an investment that you are doing to do well, in your life and in your career. So for a Plus subscription, again, the fees is 22,550 for 12 months, and if you're going for 24 months, it is 32,800. Now, for Iconic subscription, the fees for 12 months is 39,500, and for 24 months, it is 59,999. You can use this code JNLife10 to get a 10% off on any of the subscriptions, and the same is to enroll for the combats that happen every Sunday. So, whoever is a CAT aspirant at 12 noon every Sunday, there's a test happening. We call it combat. Please do participate in the test. Very, very important, right? For IPMAT and BB aspirant, there is a separate Telegram channel with amazing features. You can follow the channel so that you get the notifications, right? So let's quickly start with parallel structure. Hi Ritika, good morning. So if you remember in yesterday's class, I was talking about that how the concepts that you are learning, like we have learned what all concepts in the class: subject verb agreement, pronoun ambiguity, misplaced modifiers, and today we are doing parallel structure. So all these concepts, and then we of course idioms and phrases होता है एक और एक tenses है. So all these concepts, they are driven from parts of speech that we have learned in our schools, right? So like I said, कौन से parts of speech किए थे? Nouns किए थे, pronoun किया था, उसके बाद verb किया था, उसके बाद हमने adverb किया था, उसके बाद adjective किया था स्कूल में, और prepositions किया था, इन और conjunctions किया था, और इंटरजेक्शन किया था. तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच थे. पार्ट ऑफ स्पीच मतलब जब आप इंग्लिश बोलते हो, लिखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो. सो एवरी वर्ड बिलोंग्स टू आइदर ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो हमने आई एम श्योर आप हमने डिस्कशन कर लिया, तो आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब्स का कॉन्सेप्ट है. प्रोनाउन एम्बिग्विटी का कॉन्सेप्ट प्रोनाउन से ड्रिवन है. मिसप्लेस मॉडिफायर हमने कल किया, एडजेक्टिव और एडवर्ब से ड्रिवन है. पैरेलल स्ट्रक्चर आपका कंजंक्शन से ड्रिवन है. ईडियम्स आपका प्रेपोजिशन से ड्रिवन है. टेंसेस फिर वर्ब से ड्रिवन है, और इंटरजेक्शन पे क्वेश्चन आते नहीं है. So that's how what we are doing today. We are going to see कि ये जो parallel structure है, ये conjunction से कैसे driven है.
और पैरेलल स्ट्रक्चर होता क्या है. गुड मॉर्निंग निर्भय, गुड मॉर्निंग गौतम, गुड मॉर्निंग. So parallel structure basically is driven by conjunctions, and that's the agenda for today. So we are going to learn conjunctions and then we are going to see how parallel structure works. Right, so let's quickly begin with today's class. हाँ, तो उससे पहले आप कंजंक्शंस की डेफिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या हैं जो कंबाइन करती हैं. तो कंजंक्शंस के वेरियस रोल्स हो सकते हैं, राइट. तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नाम क्यों दे रहे हैं इसको, क्योंकि बेसिकली जो पैरेलल स्ट्रक्चर का रूल है वो वहीं एप्लीकेबल होगा जहाँ कॉम्बिनेशन होगा या जहाँ पे लिस्ट बन रही होगी. इसलिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही अपना इंटरैक्शन ज्यादा रखेंगे. वी आर फोकसिंग ओनली ऑन लाइक अब बिकॉज भी एक कंजंक्शन है, बिकॉज आपको चाहिए नहीं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्विंग में, तो पैरेलल स्ट्रक्चर. दैट इज द रीजन मैं हमेशा कहती हूँ कि ग्रामर पूरी की पूरी नहीं पढ़नी है, आपको कोई ग्रामर का एक्सपर्ट नहीं बनना, आपको उतना ही कॉन्सेप्ट चाहिए जितना आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करे. सो दैट इज द रीजन आई कंटिन्यूसली फोकस दैट देयर विल बी पीपल हु विल बी डूइंग रेन एंड मार्टिन. रेन एंड मार्टिन में 100 डेफिनेशन है एक टॉपिक पे, 100 की 100 याद करके क्या करोगे, कोई डेफिनेशन आपसे पूछेगा नहीं. आपने सारे टाइप के कंजंक्शंस पढ़ ली और एग्जाम में सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सारे, तो वो आपका एफर्ट इन द इनकरेक्ट डायरेक्शन चला जाता है. दैट आई वुडंट वांट. ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं, जो कंबाइन करते हैं. तो बहुत सारे कंजंक्शंस में एक कैटेगरी होती है कंजंक्शंस की जिसका रोल लिस्ट बनाने के काम आता है. तो हम, क्योंकि पैरेलल स्ट्रक्चर लिस्ट में ही एप्लीकेबल है, इसलिए वी आर जस्ट स्टार्टिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. So coordinating conjunctions are the words which link मतलब join करते हैं, coordinate करते हैं two or similar words को, phrases को और clauses को into one fluid idea. मतलब एक sentence में elements को combine कर देते हैं. ठीक है, अब आपको specifically ये words याद रखने हैं, ये conjunctions याद करनी है, and, but, or, nor. राइट. अब आप कैसे करते हो, निमोनिक क्रिएट करते हो या सिंपली आपको याद रह जाती है. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, राइट. सो दीज आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. दे आर यूज्ड टू कंबाइन, दे आर यूज्ड टू मेक अ लिस्ट, and specifically we are working on these four, and then there are paired ones also. coordinating conjunctions paired में भी होती है, so that we are going to see. ठीक है, चलो. अब पैरेलल स्ट्रक्चर क्या कहता है कि आप लिस्ट बना रहे हो, तो लिस्ट में आप ये सपोज करो मैं लिस्ट बना रही हूँ, ये लिस्ट में एलिमेंट 1, ये लिस्ट में एलिमेंट 2, लिस्ट में एलिमेंट 3, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं. जो तुम ये 3 एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हो पैरेलल, मतलब इन 3 एलिमेंट्स को जब आप कंबाइन कर रहे हो तो आपको देखना इन तीनों का ग्रामेटिकल फंक्शन सेम रहे. So what is parallel structure? Whatever elements, so what we are combining 1, 2 and 3, or 1, 2, 3, 4, 5, whatever elements you are combining in the list, they should have the same grammatical function. इसका मतलब होता है parallel structure. People might also call it parallelism. ठीक है, या parallel construction, कोई भी आपको टर्म कहीं भी दिख सकती है, all means the same. तो अब कैसे, क्या बात हो रही है, मुझे तो आपको समझ नहीं आया, तो ये एग्जाम्पल देखो. जैसे एंड से एक लिस्ट बन रही है, टू नाउन्स आर वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट बाय कंजंक्शन. लॉरा एक नाउन है, सिस्टर एक नाउन है, या और से आप रॉजर और बेथ को कनेक्ट कर रहे हो. तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक नाउन ले लेते हो आप और एक एडवर्ब ले लेते हो, या एक एडवर्ब ले लेते हो, एक एडजेक्टिव ले लेते हो, राइट. या एक वर्ब आप पास्ट में ले रहे हो, एक वर्ब आप प्रेजेंट में ले रहे हो. तो इसका आप ध्यान रखोगे. जैसे ये एक एग्जांपल देखो, एंड से आपने 2 फ्रेजेस को कंबाइन किया, रेज्ड हिज हैंड एंड आस्क्ड अ क्वेश्चन. तो आप ऐसे नहीं कर सकते माइकल रेज्ड हिज हैंड एंड इज आस्किंग अ क्वेश्चन, वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है. So whatever you are combining with the list, they should have the same grammatical function. तो अगर 2 आप actions को combine कर रहे हो, you are going to ensure कि उनके tenses are same, right? So Dennis is hesitating but continued nahi, or Dennis had been hesitating but continued no. So if you're combining with but, ensure that both these verbs are in the same tense. Are we clear with both these examples? Any doubts, anybody? Any doubts with parallel structure, whatever we have covered so far? कोई doubt है तो बताओ, नहीं तो let's quickly proceed. I want to keep the sessions to be very crisp since exams are approaching, so I don't want to unnecessarily drag things. ठीक है, चलो, good.
अब जैसे आपको मैंने जेरेंड पढ़ाया था कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है जो नाउन की तरह बिहेव करता है, तो उसको हम जेरेंड कहते हैं। हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। एग्जाम्पल था स्मोकिंग किल्स। स्मोकिंग यहाँ पे वर्ब नहीं है, किल्स वर्ब है। तो अगर आपका स्मोकिंग जेरेंड है तो जेरेंड के साथ वर्ब सिंगुलर जाता है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमने एक रूल पढ़ा था। अब अगर आप दो इनफाइनेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये नाउन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो अगर आप लिस्ट में एक इन्फिनेटिव ले रहे हो तो दूसरी साइड दूसरा एलिमेंट जो होगा वो भी इन्फिनेटिव होगा। जैसे द रिपोर्टर वांट्स, अब इसमें वर्ब क्या है, वांट्स है। ध्यान से देखो, रिपोर्टर आपका सब्जेक्ट है, वांट्स वर्ब है, और टू गो और टू इंटरव्यू ये इन्फिनेटिव है। तो आप चाहो तो ग्रामर में ये बाद वाले टू को ओमिट किया जा सकता है, यानी इसको आप हटा दो तो भी सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, रखोगे तो भी करेक्ट होगा। समझ में आ रही है बात? वी वांट टू अटेंड द थिएटर और टू द प्ले अ बोर्ड गेम टुनाइट, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। इन्फिनेटिव समझ में आ गया, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कोई भी वर्ब तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब यूजुअली स्टूडेंट्स, मतलब मेरे पास इसका कोई रीजनिंग नहीं है कि तीन ही में क्यों करता है और पांच में क्यों नहीं करता। दैट्स हाउ द ग्रामर रूल्स वर्क। तो जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, कहीं भी आपको लिस्ट मिल जाएगी, आपने आई एम श्योर पढ़ी भी होगी स्कूल में। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, two plus verb का first form is infinitive and we are combining with and, which is a coordinating conjunction. हम चार पढ़ के आए थे, and, but, or, nor. So now we are making a list here. So if you are combining two infinitives, you can omit the two associated with the later wala infinitive if you wish. If you want to keep it, then also it is grammatically correct. Are we clear? Quickly give me a thumbs up. Lakshya, Asim, Ritika, Shweta, who all have joined. Aryan, Ritika, Angela. Then we have Mudit, Arun, Pranita. I hope it is clear to everybody. आपको समझ में आ रहा है? I know grammar थोड़ी intimidating होती है, ठीक है? चल, good. अब हमने क्या किया, टू एडजेक्टिव्स आर कनेक्टेड बाय कंजंक्शन। द सिंगर्स वॉइस वाज टेंडर बट स्ट्रॉन्ग। तो बट से टेंडर भी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आपको मिसप्लेस मॉडिफायर कल ही पढ़ाया तो बताया, वर्ड्स दैट क्वालिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस। तो टेंडर एंड स्ट्रॉन्ग बट से कंबाइन कर रहे हो, बोथ आर बेसिकली एडजेक्टिव्स। द केक वाज टेस्टी एंड स्वीट, अगेन टेस्टी एंड स्वीट बोथ आर एडजेक्टिव्स, ठीक है? द थीफ वॉक्स सॉफ्टली एंड क्वाइटली। सो एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब्स, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स की क्वालिटी को बताता है। ये कल डिटेल में पढ़ा था, किसी को डाउट है तो वापस पूछ लो, ठीक है? द प्लेन वॉज फ्लाइंग फास्ट बट लो। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने दो एडजेक्टिव्स कंबाइन कर लिए, दो इन्फिनेटिव कर लिए, दो एडवर्ब कर लिए, जो भी एलिमेंट्स, तीन भी करते तो तीनों एडवर्ब्स का ग्रामेटिकल, आई मीन तीनों जो एलिमेंट्स होंगे, तीनों एडवर्ब्स होंगे या तीनों इन्फिनेटिव्स होंगे या तीनों एडजेक्टिव्स होंगे। दैट्स हाउ द रूल इज गोइंग टू बी ड्रिवन। आई होप दिस इज क्लियर। तो पैरेलल स्ट्रक्चर अगर क्लियर है तो एक तो आपने ये करी एंड, बट, और, नॉर, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स बनता है विद दीज। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को चेक करती हैं। पहला ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट को चेक करती हैं, ये पैरेलल स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं, और ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशन के कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं। तो यूजुअली जहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन चेक कर ले, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, राइट? अब कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये सारे हाँ, एज वेल एज इस लिस्ट में नहीं डालते हम लक्ष्य, ठीक है? तो आप जब बोथ से जो भी एलिमेंट कंबाइन करोगे, पहला तो पैरेलल स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे माय शर्ट एंड माय पैंट्स, आपने दोनों नाउन्स को कंबाइन कर दिया, या इस सेंटेंस में ये दोनों सब्जेक्ट्स भी हैं, ठीक है? अब अगर आप देखोगे तो बोथ के साथ सिर्फ एंड जाता है, बोथ के साथ कोई और कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते, जैसे बोथ एज वेल एज नहीं ले सकते, बोथ विल बी फॉलोड बाय एंड। तो ये आपका इडियोमैटिक एक्सप्रेशन हो गया, मतलब इसके स्टैंडर्ड यूसेज है, ठीक है? और बोथ और एंड के साथ जो एलिमेंट्स कंबाइन करोगे उनका ग्रामेटिकल फंक्शन सेम रहेगा, ये पैरेलल स्ट्रक्चर हो गया।
अब मैंने कहा था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी चेक करता है। तो बोथ माय शर्ट एंड पैंट्स में आपका जो सब्जेक्ट का नेचर है वो प्लूरल हो गया, तो यानी कि जो आपका वर्ब होगा वो होगा प्लूरल। आई होप दिस रूल इज क्विक clear to everybody. Quickly give me a thumbs up before we move to the next rule. कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है सबको? बोथ से तो वेरी क्लियरली इंडिकेट हो जाएगा कि जो नेचर ऑफ द सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो द वर्ब दैट यू आर गोइंग टू यूज विल आल्सो बी प्लूरल। ठीक है। Now if you are connecting two subjects by these three phrases, not only but also, either or, neither nor, इनसे अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि एक तो स्टैंडर्ड है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो ही आएगा, आइदर के साथ और ही आएगा, नाइदर के साथ नॉर ही आएगा, इसको आप टैम्पर नहीं कर सकते। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज ये। तो इससे तो ईडियम हो गया, और जो आप एलिमेंट्स कंबाइन करोगे उनका ग्रामेटिकल फंक्शन सेम रहना चाहिए, इससे पैरेलल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट चेक हो गया। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का कैसे हुआ? नॉट ओनली सूसी बट ऑल्सो हर फ्रेंड इज कमिंग, तो जो आपका नाउन वर्ब के पास है वो डिसाइड करेगा कि वर्ब का नेचर क्या है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड वर्ब के पास है, फ्रेंड सिंगुलर है, तो हमने वर्ब क्या लिया? सिंगुलर। इस केस में देखिए नॉट ओनली सूसी बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स आर कमिंग, तो फ्रेंड्स वर्ब के पास है विच इज बेसिकली वर्ड प्लूरल इन नेचर, तो वर्ब इज प्लूरल। नाइदर सूसी नॉर हर फ्रेंड इज कमिंग, तो फ्रेंड के पास सिंगुलर इसलिए वर्ब सिंगुलर, वर्ब के पास वाला नाउन प्लूरल। यस, सेकंड नाउन इज गोइंग टू डिसाइड द नेचर ऑफ द वर्ब। आर वी क्लियर? यार इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में आएंगे, चाहे वो आप जी मैट का एग्जाम दे रहे हो, कैट का दे रहे हो, आईएफटी का दे रहे हो, जिप मैट का दे रहे हो, हाई पॉसिबिलिटी है ये रूल टेस्ट होने की। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखो। माय बेस्ट फ्रेंड टुक मी डांसिंग एंड टू अ शो, तो डांसिंग जेरेंड है और टू अ शो इन्फिनिटिव है, तो आप ये करोगे टुक मी और टू अ डांस, एंड ये बाद वाला टू ओमिट कर लिया, आप रख भी सकते थे। माय बेस्ट फ्रेंड टुक मी टू अ डांस एंड टू अ शो, ये बाद वाला आपको बताया था, ये वाला ओमिट किया जा सकता है। माय डॉग ओनली लाइक्स टू प्ले फेच बट ऑल्सो, देखो अब यहाँ पे नॉट ओनली और बट ऑल्सो आ गया, लाइक तो बट ऑल्सो ही ऑल्सो लाइक्स टू चेज कार्ड्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ही लगा दिया, ही ऑल्सो लाइक्स टू चेज कार्ड्स। ठीक है, और यू कैन से माई डॉग लाइक्स नॉट ओनली टू प्ले फेच बट ऑल्सो टू चेज कार्ड्स। आई होप दीज एग्जाम्पल्स आर क्लियर टू एवरीबडी। कोई डाउट है तो बताओ। एनी डाउट एनीबडी? anybody who's present in the class, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो बढ़े आगे। quickly give me a thumbs up if you're making sense. clear है? चलो शाबाश, गुड गुड, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। अब ये आप कल की तरह 5 मिनट ये क्वेश्चंस खुद से करो, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस। खुद से करो ये 5 क्वेश्चंस, उसके बाद ऑफ कोर्स मल्टीपल चॉइस पे मूव करेंगे। सारे कर लो, देन वील डिस्कस। चलो गुड गुड, वी हैव स्टार्टेड गेटिंग द आंसर्स। एनीबडी हु स्टिल डूइंग, जिसका वेट करना है बताओ।
चलो, John had to work on a thesis, write a letter to his friend, and play in a softball game. So play will be the answer. I hope it is clear. I hope this is clear to everybody, right? So for 4 events in the school: 200-meter race, pole vault, high jump, and shot put. So pole vault will be the answer. Terry enjoyed drinking water. So tasting wine. कैसे चल रहा है? Drinking water, so tasting wine. Watching a recording on YouTube is not exciting as watching the performance live. Alan likes to hike, to attend concerts, and to play guitar. I hope we are clear with these questions. I've underlined the right answers. कोई doubt है तो बताओ, नहीं तो आगे पढ़ेंगे. ठीक है, very good. The answers were, most of you were correct with your answers. ठीक है, correct questions. I hope there is no doubt now. Fundamentally अगर concept clear है तो आसानी से हो जाएगा. You can utilize this feature on the app, which is ask a doubt. Then you can select the picture, you can choose it from the gallery, or you can click it, then crop the image and select the section from where the doubt is coming. Amazing feature है, use करो. राइट चलो, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आप करो, उसके बाद मैं पोल क्रिएट कर लूंगी. पहले 30 सेकेंड्स ट्राई करो. करेक्ट, वेरी गुड. ठीक है, तो पोल को खत्म कर दें. कर ही लिया है आपने. सो देखो, गुड रेस्टोरेंट इज स्पेशियस, प्लेजेंटली कटर एंड हैज गुड लाइटिंग. तो ये कैसे जा रहे हैं? एडजेक्टिव ड्रिवन है, तो आपको भी एडजेक्टिव रखना है. एंड हैज गुड लाइटिंग यहाँ पे नहीं इंक्लूड करोगे, तो दिस बीइंग वेल लिट भी चेंज करेगा, इज लिट वेल भी चेंज करेगा, एंड द लाइटिंग इज गुड इज अगेन नॉट राइट. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी. किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो प्लीज पूछो. एंजेला, श्वेता, लक्ष्य, निर्भय, रितिका, any doubts anybody? And Mudit, whoever is attending the session. ठीक है, चलो. अरुण, चलो ये करो फिर. ये यहाँ से अंडरलाइंड है. आई डोंट नो व्हाई दिस शोइंग टू बी ब्लीक. यहाँ दिस इज अंडरलाइंड दैट से. अब ध्यान रखो जयदेव, ऐसी गलती एग्जाम में मत करना. लिख लो कहीं कि ऐसे गलत हो रहा है. ठीक है, सो वी शुड नॉट डू दीज मिस्टेक्स. रिपीट मत करो बस. Okay, very good. इसलिए आई पुट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग सेंटेंस करेक्शन, क्योंकि इतने जल्दी क्वेश्चंस होते हैं. एक बार आपको रूल की अवेयरनेस है, एंड दैट really really helps. So please ensure that you are learning. जो आपको फियर ऑफ सेंटेंस करेक्शन है उसको हटा दो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग रिलेटिवली टेक्स वेरी लेस टाइम. सो कॉलेज बोर्ड, अब आपको कैसे पता चलेगा? एक सेकेंड, आई जस्ट बिफोर वी डिस्कस. आपको मैंने कल एक बात बताई थी कि अगर आपको वर्ब्स अंडरलाइन दिखते हैं तो आप सब्जेक्ट वर्ब, आप अंडरलाइन पोर्शन चेक करो, राइट? उससे बहुत क्लूज मिलते हैं. तो वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या टेंसेस का क्वेश्चन, वर्ब टेंस का क्वेश्चन होता है. अगर आपको प्रोनाउंस अंडरलाइन मिलते हैं तो यानी कि वो मोस्ट प्रोबेबली प्रोनाउन एम्बिग्विटी पे या प्रोनाउन के रूल्स जो मैंने आपको बताए थे उस पे टेस्ट करना है. अगर स्टार्टिंग फ्रेज आपका यूजुअली, अगर स्टेटमेंट है स्टार्टिंग विद अ फ्रेज, तो वो यूजुअली मॉडिफायर का सवाल होता है, राइट? सिमिलरली अगर आपको किसी भी जगह एक लिस्ट दिख रही है विच इज कंबाइंड बाय एंड, बट और नॉर, यूजुअली क्या है, और एंड और बट से ही क्वेश्चंस बनते हैं, और से नॉट से तो बहुत कम लिस्ट दिखेगी.
नॉर और बट से लिस्ट कम दिखती है, यूजुअली एंड और नॉट। तो कहीं आपको लिस्ट दिख रही है तो देन इट इज अ पैरेलल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। तो आप ये पूछना हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट का है, तो ये अगर क्लूज हिडन होते हैं, इसको अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। तो देखो लिस्ट है, यूजुअली लिस्ट मिलेगी आपको, और हमेशा ध्यान रखिएगा नॉन अंडरलाइन पोर्शन इज करेक्ट। तो आपका आंसर जब भी ड्रिवन होगा वो नॉन अंडरलाइन पोर्शन से ही ड्रिवन होगा। The college board made a request to the authorities that a waiver be obtained. तो कैसे लिस्ट बनाई, waiver be obtained and residency requirements are reviewed, नहीं फिर residency requirements be reviewed. So which is happening only in this will be से और are से, तो nature ही sentence का change हो गया, to review भी नहीं, pattern change हो गया, structure consistent नहीं है, and again E will go out. So C is the answer. I hope it is clear to everybody. कोई doubt है तो बताओ, नहीं तो चले आगे। ठीक है, चलो do this. पहले अंडरलाइन पोर्शन में एरर देखिए, एरर समझ में आ गया तो वो चॉइस एलिमिनेट कर दीजिए जिसमें आपको एरर दिख रहे हैं। बाकी बची हुई चॉइसेस में ध्यान रखिए, नो न्यू एरर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, इसका ध्यान रखोगे। राइट, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, रिडंडेंसी ना हो, रिडंडेंसी का मतलब रेपिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ना हो, और फिर सब अगर फिर भी बच जाता है तो चूज फॉर द आंसर, गो फॉर द आंसर चॉइस विच इज मोस्ट कंसाइज। अच्छा चलो, वी हैव स्टार्टेड गेटिंग द आंसर्स ओनली। हाँ, चलो वेरी गुड, शाबाश। So some of the many changes set for sports field in coming years include building additional seating, improving safety। तो यहाँ पे building, improving, तो यहाँ लिस्ट कैसे बनेगी, and लिस्ट है देखो, constructing, राइट। सो कंस्ट्रक्शन हट गया, ये कंस्ट्रक्शन हट गया, इसमें तो बता ही नहीं रहे न्यू वार्सिटी एथलेटिक सेंटर के साथ क्या हो रहा है, इससे भी सेंटर अंडर कंस्ट्रक्शन, मीनिंग चेंज हो गया। सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, बी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो चलें आगे। ठीक है, चलो शाबाश, करो इसको करो। So most of you have answered it. Everybody has answered it correctly. Very good. ठीक है, चलो। So John is not only a terrific pianist. So terrific is basically an adjective. तो terrific pianist, but also या तो बोलते John is all also good at playing piano and at playing cricket. Now we are going to see how it can happen. So terrific pianist, बट ऑल्सो एट ग्रेट तो नहीं, फिर अगर आप टेरिफिक पियानिस्ट लिख रहे हो तो यू हैव टू से गुड क्रिकेटर। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। सो दैट इज द रीजन, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, उसके बाद नॉट ओनली ग्रेट एट प्लेइंग क्रिकेट, जॉन इज ऑल्सो गुड एट टेरिफिक एट प्लेइंग पियानिस्ट, तो इसलिए सी भी एलिमिनेट हो गया।
John is not only a terrific pianist but also a great cricket player. So I hope you can see how the construction is happening, right? Terrific matlab amazing, shandar. So we are going to keep this, and again E goes out. So the correct answer is D. I hope this is clear. Can we move to the next question, please? चलो करो इसको करो. Thank you for the response. ऋतिका तो क्वेश्चन से पहले आंसर बता देती है. वेरी गुड, शाबाश ऋतिका. इतनी जब ईज बिल्ड हो जाएगी ना सेंटेंस करेक्शन के साथ तो आपको मजा आएगा. ओके. Rajiv's co-workers appreciated both her and देखो both his dedication and the way he paid. So his dedication and his attention to the detail, right? तो हमें तो नॉन अंडरलाइन पोर्शन के हिसाब से सेंटेंस को पैरेलल बनाना है. This goes out also. Praised his attention. So both and also ये कोई grammatically fit in नहीं होता. Both के साथ and ही आएगा, also नहीं आएगा. That is the reason B goes out. And his attention to detail, we can keep it. They praise the way he paid attention to the detail. तो see the point is this that co-workers both और and का मतलब यही होता है कि आप सीधा his dedication और his attention को combine करो. So that is the reason D will go out. And they praised his attention, they नहीं चाहिए. ठीक है, वो तो पहले ही बोल दिया appreciated both. तो both का मतलब ही दोनों elements की बात हो रही है. So this is again bringing redundancy. The correct answer is C. I hope this is clear to everybody. कोई doubt है तो बताओ. Any doubt in this question? Anybody? Anybody? Nirbhay, Jaydev, Asim, Angela, Pranita, Shweta, Arun. कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रहा है? आई होप वी आर नॉट जस्ट रशिंग. इट्स गोइंग इन योर ब्रेन्स. चलो करो, आराम से करना. थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स श्वेता. हल्का सा ट्रिक है क्वेश्चन में, तो ध्यान से करना. लंबा क्वेश्चन है. अगर आप जैट या आईएफटी में देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, बड़े बड़े सेंटेंसेस. दो एरर्स हैं सेंटेंस में, इसका भी ध्यान रखेंगे. वेरी गुड ऋतिका, शाबाश.
थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है बी और डी में स्टूडेंट्स को। देखो, द मार्केट, अगर आपने मेरा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्लास अटेंड किया है तो द मार्केट फॉर कंटेंट, सो फॉर से लेकर यूजर्स तक एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। मार्केट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो इसी ग्राउंड पे ये वाले दोनों आंसर चॉइसेस एलिमिनेट हो गए। बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो ऋतिका। आई होप दिस इज क्लियर। मार्केट सब्जेक्ट है। अच्छा, मैंने एक छोटा सा वो भी बनाया था, एक वीडियो 10 रूल्स ऑफ ग्रामर टू नो। आई थिंक वो लास्ट सैटरडे को या फ्राइडे को रिलीज हुआ था ऑन द चैनल कैट फॉर एमबीए। एक बार वो देख लेना, उसमें भी मैंने इस रूल के बारे में बात करी थी। तो अगर आपको बिल्कुल क्रिस्प चाहिए तो 15-16 मिनट का वीडियो है, और मेजरली कॉन्सेप्ट्स जो टेस्ट, जिनकी पॉसिबिलिटी ऑफ टेस्टिंग मोर है, उनको कवर कर लेता है। तो ये देखो, कंटेंट सच एज फीचर आर्टिकल्स। अब ये आई होप ये तो समझ में आ गया। मार्केट सिंगुलर है तो जो क्या होता है, कई बार क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक बड़ा सा प्रेपोजिशनल फ्रेज डाल देते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन विद द प्रेपोजिशन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक प्रेपोजिशनल फ्रेज डाल दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं कि एक्चुअली सब्जेक्ट क्या है, और प्रेपोजिशनल फ्रेज के नाउन से वर्ब को अग्री करा दे। आपको सब्जेक्ट जो सेंटेंस में है उससे वर्ब को अग्री कराना है। आई होप ये क्लियर है सबको। तो इसके ग्राउंड्स पे हमने ए और बी को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है। अब मार्केट को कंटेंट सच एज फीचर आर्टिकल्स, अब लिस्ट किस में बन रही है? लिस्ट इन 3 एलिमेंट्स में बन रही है। तो हमें पैरेलल किसको करना है? इन 3 को करना है। तो ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये प्लूरल, या तो तीनों को प्लूरल रखो या तीनों को सिंगुलर रखो। सो दैट इज द रीजन सी गोज आउट। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? डी। राइटर्स भी प्लूरल, ब्लॉगर्स भी प्लूरल, यूजर्स भी प्लूरल। तो पैरेलल स्ट्रक्चर भी टेस्ट किया और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी टेस्ट किया। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबडी। सो देयर वर 2 कॉन्सेप्ट्स टेस्टेड इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो गुड। ये करो। ये तो आसान है, कर लोगे आप। वेरी गुड। देखो, द आर्ट ऑफ पिकासो, द इन्वेंशंस ऑफ न्यूटन एंड शेक्सपियर्स प्ले। तो क्या होना चाहिए? द प्ले ऑफ शेक्सपियर। ऑल दीज 3 रिप्रेजेंट ग्रेट अचीवमेंट्स इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो ए तो एलिमिनेट हो गया, राइट। ए तो एज इट इज एज द अंडरलाइन पोर्शन है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एज इट इज होता है, बट अगर आपको, यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल यू आर रीडिंग द ऑप्शन। पिकासो, न्यूटन एंड शेक्सपियर ऑल रिप्रेजेंट ग्रेट अचीवमेंट्स। पिकासो, न्यूटन और शेक्सपियर की नहीं बात हो रही थी, पिकासो के आर्ट की, न्यूटन के इन्वेंशन की, और शेक्सपियर के प्लेस की बात हो रही थी। सम आंसर्स वर बी। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अब ऑल ग्रेट, इससे मीनिंग सेंटेंस का चेंज हो रहा है। ऑल ग्रेट अचीवमेंट्स इन ह्यूमन, सार ये कह रहे हैं कि ये तीनों आर, द सेंटेंस इज ट्राइंग टू से दीज ऑल रिप्रेजेंट। ठीक है, दीज ऑल रिप्रेजेंट ग्रेट अचीवमेंट्स। ये कह रहे हैं कि जितने भी अचीवमेंट्स हुए वो केवल यही 3 बताते हैं। सो दिस टेम्पर्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, हेंस वी आर गोइंग टू गो फॉर डी एज एन आंसर। आई होप वी आर क्लियर ऑन दिस क्वेश्चन एवरीबडी। एनी डाउट्स प्लीज आस्क। ठीक है। सो आपके करेक्ट आंसर की एक्सपेक्टेशन क्या है? द करेक्ट आंसर शुड रेक्टिफाई द एग्जिस्टिंग एरर,
right? Whatever error or errors, should not introduce any new error. मीनिंग शुड रिमेन द सेम. अगर आपको लग रहा है कि भाई एरर तो नहीं है ग्रामेटिकली बट मीनिंग टेम्पर हो रहा है तो दैट कैन नॉट बी द आंसर. मीनिंग शुड रिमेन सेम. रिडंडेंसी या रेपिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होंगे, तो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए. एंड अगर आप फिर भी दो आंसर चॉइसेस में कंफ्यूज होते हैं तो वो आंसर चॉइस पिक करिए जो कंसाइज और क्रिस्प हो. Not at the cost of losing the information, but if you have the same information, both are grammatically correct, then you go for the answer choices and then you go ahead with this. ठीक है? So this is the IP Mat ka channel. You can subscribe. There are amazing things happening there. So this is the link to subscribe. Please do that. And tomorrow we are meeting for sentence correction 8 AM. कल tenses करेंगे. बिल्कुल क्रिस्प सेशन लूंगी मैं. क्वेश्चंस करेंगे और आपको मतलब एक कोशिश करेंगे कि जितने जितनी प्रिसिशन के साथ ये क्लास ली जा सके उतना लूंगी. वह टेंसेस नेवर एंडिंग है. ट्रेनर्स बहुत टाइम देते हैं बट आपका टाइम का लिमिटेशन है और आई विल ट्राई कि आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लो तो उसी से आपका काम हो जाए. ठीक है? सो मेजरली हम वहां फोकस करेंगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं. जिन जिन टेंसेस पे क्वेश्चंस ज्यादा क्रिएट होते हैं उन पे बात करेंगे. 9 AM अभी क्लास है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 2019 के. आ जाओ. राइट. और शाम को पैरा कंप्लीशन है. सो कल हमने बहुत डिटेल में पैरा जंबल्स किया था. आज पैरा कंप्लीशन करेंगे. सो दैट्स द प्लान फॉर द डे एंड फॉर टुमारो. राइट. For the IP Mat BBA Hotel Management aspirants, the subscriptions have amazing features. Live interactive sessions हैं. हर 4th session doubt है. Recorded lectures हैं. Daily practice sectional test हैं. You can practice full test and then you have access to all the notes from one place, right? So this is for IP Mat वाले students. एक हर sectional test होता है every day at 4:30. I hope you are participating. और अगर आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाना चाहते हो तो प्लीज यूज द कोड JNLive10 to get a 10% off on any of the subscriptions, right? And this is the new channel, so you can also like and share and subscribe. I hope you found the session useful. ठीक है, आ जाओ. 9 o'clock रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं. इवनिंग में पैरा कंप्लीशन करते हैं. Wonderful, Ritik. I am so glad if the sessions are helping. Thank you so much. That's very encouraging. ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना. Let's meet at 9. Please take care. God bless you.